Good afternoon, students. Welcome to the first experiment through virtual lab for the fluid mechanics lab. Okay, so as you can see my screen, this is an initiative by Government of India for the virtual lab on which there are different IITs and NITs giving the or have given a platform where an individual can learn experiments, okay, by simulating in a simulator process. So let's see how we perform our experiment number one. So what is experiment number one? That is venturimeter. As we have already covered what is venturimeter. Okay, venturimeter is a flow measurement device. As we have covered that the venturimeter is used to measure the discharge. Okay, it is based on the principle of Bernoulli's equation. Okay, it is based on the principle of Bernoulli's equation. And if we talk about the venturimeter, what we used to do, we used to reduce the cross-sectional area throughout which the pressure difference is generated, and this pressure difference is measured using the manometer, which helps in determining the rate of flow of liquid or discharge through the pipeline. Okay, so referring to the theory, what we have covered under the venturimeter is used to measure the discharge through pipe. Okay, if we look at the sections of venturimeter, then it is divided into three parts. That is rapid converging section, throat section, that is having the minimum cross sectional area, and the gradual diverging portion. So if you look at the pictorial representation of the venturimeter, then this is the inlet. This particular level is called as the rapid converging section, and this is the throat, which is having the minimum cross section area, and it's now gradually diverging, that is called as the gradually diverging portion. And if in reality, if you want to look at the venturimeter, how does it look like? So this is your venturimeter. Okay, where we used to connect the manometer at these two particular points, throughout which we used to note the pressure difference through manometry. Okay, and that pressure difference would be utilized to calculate the rate of flow of liquid. Likewise, if we look at the derivation, okay, we have just compared the Bernoulli's equation at 1 and 2, and at last we had derived the expression for theoretical discharge as Q theoretical is equals to A1 into A2 under root of 2GH upon A1 square minus A2 square. What is H? H is the difference in the pressure head. ठीक है, तो H क्या है? ये प्रेशर हेड का डिफरेंस है, जिसको हम लोग यहाँ मैनोमीटर कनेक्ट करके हम लोग जो है वो मेजर करते हैं. ठीक है, जैसे कि if you look at the diagram, हमने यहाँ पे मैनोमीटर कनेक्ट किया है और फिर हम लोग H जो है इस मैनोमेट्रिक की हेल्प से हम लोग H जो है वो कैलकुलेट करते हैं. और हमें अगर एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना हो तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्चार्ज. ठीक है, दो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज टेकन एज 0.94 to 0.98. okay, now referring to the website of virtual lab, though there are different detailed theory, you can see like cylindrical entrance section, converging conical section, throat, diverging section, what are the types of venturi tubes. Okay, you can go through this types of venturi tubes, though you have to write all these things in your practical copies. Okay, and if we look at the theory what we have derived here, the same theory is derived here to conclude the expression at last, that is Q is equals to A1 A2 under root of A1 square minus A2 square under root of 2G, और यहाँ पे अंडर रूट भी मैच भी मल्टीप्लाई होगा, और जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअल डिस्चार्ज इज गिवन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एंड दिस इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. ठीक है, A1 A2 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2GH. okay, here it is wrongly written, this would be actual discharge, V2 is written. Okay, so this is the basic theory related with the venturimeter. Okay, now let's look at the procedure for performing the experiment. Okay, so what is our objective under this
वेंचुरीमीटर एक्सपेरिमेंट जस्ट टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ गिवन वेंचुरीमीटर। ठीक है, हम लोगों को जो वेंचुरीमीटर जो हमें दिया गया है, प्रोवाइडेड है, उसका हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, तो जब हम सिमुलेशन विंडो को अभी हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिमुलेशन विंडो में हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ गिवन वेंचुरीमीटर, व्हाट आर द apparatus यूज्ड। एक वेंचुरीमीटर है यहाँ पे आपके जो कनेक्टेड है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर ये कनेक्टेड है। ठीक है, कलेक्टिंग टैंक, दिस इज योर कलेक्टिंग टैंक। ठीक है, पीजोमीटर रीडिंग जो है, स्टॉप वॉच चाहिए आपको, मेजरिंग स्केल चाहिए। ठीक है, ये पाइप का सेटअप है कंप्लीट। ठीक है, पहला सेकंड स्टेप है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ पाइप देन क्लिक नेक्स्ट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन दिखा रहा है, इसको आप अपने से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द पाइप एंड देन क्लिक नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो फिर एक सुटेबल डायमीटर का हम लोगों को पाइप जो है वो सेलेक्ट करना होगा। लेट अस से कि हम लोगों ने 50 mm का पाइप जो है वो सेलेक्ट कर लिया। सो 3 पाइप्स हैं, 50 mm, 40 mm, ठीक है, 20 mm। सो these are the diameter of the pipe. Okay, 3 pipes are there. Okay, so we have selected a pipe of required diameter, that is 50 mm। 50 mm का पाइप हमने सेलेक्ट कर लिया फिलहाल के लिए। ओके फाइन, क्लिक ऑन द मेन इनलेट वाल्व टू अलाउ द वाटर फ्लो थ्रू इट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इनलेट वाल्व है वहां से हम लोग क्लिक करेंगे ताकि जो पानी अंदर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनलेट वाल्व है। ठीक है, हमने इसको खोल दिया ताकि 50 mm की जो पाइप है उससे वाटर जो है वो फ्लो हो सके। The main inlet valve is open to allow water to flow through the selected diameter pipe। जो हमने 50 mm की पाइप जो है सेलेक्ट किया, उसमें से उस पाइप में से जो लिक्विड है वो फ्लो होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे कि open the pipe valve and change the knot of the manometer from isolate position to air vent position to remove the air inside position। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो नॉट है, ठीक है, मैनोमीटर का, ठीक है, उसको हम लोग आइसोलेट पोजीशन से एयर वेंट पोजीशन में कर देंगे ताकि उसके अंदर कोई अगर वॉइड्स होंगे तो वो डिसिपेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द पाइप इनलेट वाल्व टू अलाउ द वाटर थ्रू इट। ठीक है, फिर हम लोग क्लिक करेंगे तो बेसिकली दिस आर द सर्टेन स्टेप्स। देख सकते हैं कि फिर आपका लिक्विड जो है ये फ्लो हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कलेक्ट द water, okay, throughout this pipe number 1। okay, and you simultaneously you have to start the stopwatch so that you would be able to know that how much amount of liquid is getting collected in this particular tank। ठीक है, and suppose if you are able to note down the reading or not calculate the volume of this particular tank and you have the time period, then you can predict that what is the discharge or rate of flow, ठीक है, through this pipe। ठीक है, so simultaneously we have to repeat the steps for different discharge pipe diameters, and accordingly we can calculate the coefficient of discharge। okay, now let us perform the same experiment on simulation window। okay, so let us perform it on simulator। ठीक है, this is your simulator, you have to click on the simulator। The objective same, to determine the coefficient of discharge of the venturimeter। These are the apparatus used। okay, fine, now लेट्स क्लिक द नेक्स्ट विंडो। ठीक है, तो ये जो एरो दिखा रहा है ये बेसिकली आपके नेक्स्ट को इंडिकेट करता है। तो ये हम लोग सिमुलेटर में जाके ही नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सिमुलेटर में हम लोग एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ मीडियम जहाँ पे हम फिजिकली हम प्रेजेंट ना रह के हम लोग इसको यहाँ पे एक मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें हम लोग एग्जैक्टली सेम वे में जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वैसे सेम हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नेक्स्ट किया, एक क्लिक करेंगे, देखिए अब बोल रहा है सिलेक्ट द पाइप ऑफ रिक्वायर्ड डायमीटर। तो लेट अस से मैंने फर्स्ट केस में 50 mm का पाइप जो है वो एज्यूम किया। ठीक है, हमने क्या बोला कि डायमीटर ऑफ द पाइप जो है ये 50 mm की है और इसका जो लेंथ है, लेट अस से लेंथ ऑफ द पाइप इज 3 मीटर। ठीक है, चलिए 3 मीटर जो है पाइप की लेंथ हो गई। फाइन, नेक्स्ट कर दिया। The main inlet valve is open to allow water to flow through the selected diameter pipe 1। We are doing the trial one because we have considered the pipe diameter as 50 mm। Okay,
सो द मेन इनलेट वाल्व इज ओपन टू अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू द सिलेक्टेड डायमीटर पाइप। अब पानी जो है इस डायमीटर पाइप से जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए एरो दे रहा है बार बार, तो लेट अस क्लिक। ये देखिए बता रहा है कि नॉब को ऐसे हम लेफ्ट साइड में घुमाते, तो ये देखिए अब यहाँ से पानी है नीले रंग का, ये पानी फ्लो होने लगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा क्या है कि ये क्लोज्ड पोजीशन में। ठीक है, लेट अस क्लिक, हमने इसको क्या है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमने पानी को जो है अभी अलाउ नहीं किया, अभी बंद की रखा है, टाइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो मैनोमीटर का नॉट है उसको हम लोग जो है आइसोलेट पोजीशन से एयर वेंट पोजीशन में ले आएंगे। सो ये डाउनवर्ड था, अब ये एयर वेंट पोजीशन में आ गया, ऊपर ऊपर दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द एयर वेंट पोजीशन। जो नॉट था हमारा वो अब ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अर्लियर इट वाज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नाउ इट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट the knob is then kept in the red position and note down the manometer reading। ठीक है, अब हम लोग जो है मैनोमीटर की रीडिंग जो है इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा होगा, हेड डिफरेंस, लेटर से एक यहाँ पे होगा मैनोमीटर लेवल और एक यहाँ पे मैनोमेट्रिक लेवल होगा, तो हेड डिफरेंस यू विल नोट डाउन। ठीक है, ओके, फिर हम लोग इसको ऊपर की तरफ करके पोजीशन को रीड करेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी लाइक दिस कि हमारा जो लेफ्ट लैम्प में रीडिंग आ रही है वो 42 सेंटीमीटर आ रही है, और राइट हैंड में जो रीडिंग आ रही है दैट इज 29 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमारा हेड लॉस एक्चुअली कितना हो गया? ठीक है, दैट इज 42 माइनस 29 इंटू 12.6, क्योंकि हम 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट अस 23, आई डोंट नो, ओके दिस इज योर आंसर 163.799 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें हेड लॉस जो है वो पता लग गया भाई कि कितना हेड लॉस हो रहा है। ठीक है, फाइन। अब देखिए ये पानी जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, वाटर इज नाउ अलाउड टू फ्लो थ्रू द सिलेक्टेड वेंचुरी मीटर एंड दिस फ्लो इज मेड कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी धीरे से यहाँ पे आ गया, तो पानी जो है ये यहाँ से ऐसे होते हुए जा रहा है। अब हमने क्या करना है कि at this flow rate the difference in pressure difference between inlet and throat is measured। इस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, D1 जो है वो 5 सेंटीमीटर है, D2 जो है आपका 2.72 सेंटीमीटर है, दैट इज एट द थ्रोट सेक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इस टैप को हम लोग एग्जिट वाल्व जो है इसको अभी हम फिलहाल के लिए क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमको एक्चुअल वॉल्यूम कितना अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो द एग्जिट वॉल ऑफ द कलेक्टिंग टैंक इज क्लोज्ड, हम लोग इस एग्जिट वॉल को क्लोज कर देंगे एंड द टाइम टेकन फॉर द टैंक वाटर टू राइज बाई 5 सेंटीमीटर इज नोटेड। ठीक है, तो हम लोग उस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल को नोट करेंगे जब यहाँ पे स्केल बनी होगी, ग्रेजुएटेड स्केल, जब उसमें 5 सेंटीमीटर का पानी जब भर जाएगा तो हम लोग जो है इस एग्जिट वॉल्व को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए मतलब मशीन को यहाँ से पानी को क्लोज कर देंगे, देन वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द एक्चुअल फ्लो। ठीक है, तो आइए पहले इसको एग्जिट वॉल्व को बंद करते हैं। ठीक है, ये स्टॉप वॉच ऑन हो गया। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 5 सेंटीमीटर हाइट, तो आपको देखें कि 12 सेकेंड में जो है आपका 5 सेंटीमीटर तक पानी जो है वो भर गया। यहाँ पे ये स्केल सेम जो है ये यहीं पे स्केल लगी रहेगी, 12 सेकेंड में इसमें पानी भर गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हाइट तक। ठीक है, ओके नेक्स्ट, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था? दैट इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एट द इनलेट, दैट इज 5 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया एट द थ्रोट। ठीक है, एरिया A1 निकाल लीजिए, एरिया A2 निकाल लीजिए, एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक, जो हमारा जो टैंक था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वाटर कलेक्ट कर रहे थे उसका एरिया हम लोग मैनुअली मेजर कर सकते थ्रू आउट द स्केल। फिर उसमें हमने कितना 5 सेंटीमीटर तक पानी जो है वो अलाउ किया। ठीक है, और कितना टाइम लगा 12 सेकेंड, और हमारा हेड लॉस कितना हो रहा था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एच की वैल्यू। तो हम लोग क्यू एक्चुअल जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज ए इंटू एच अपॉन टी, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्यू थ्योरेटिकल आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, दैट इज A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A1 A2 सब कोई वैल्यू आपको दी हुई है, तो लेट अस से कि
मैंने रैंडमली गलत डाल के देखा तो क्यू थ्योरेटिकल इतनी आनी चाहिए थी, क्यू एक्चुअल इतनी आ रही है और क्यू थ्योरेटिकल इतनी, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकाल लीजिए, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, लेट अस से कि 0.82 जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रायल 1, ठीक है, ये ट्रायल 1 था। अब हम लोग ट्रायल 2 परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 3 पाइप का नेटवर्क दिया हुआ था, तो हमने जो सबसे टॉप वाली पाइप थी उसको कंसीडर करते हुए हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली पाइप जो है उसके उस पाइप को कंसीडर करेंगे और ऊपर वाली पाइप का जो फ्लो है उसको बंद कर देंगे, ठीक है, फाइन। सेम वही प्रोसीजर ट्रायल 2 में हमने इसको ऑन किया, ठीक है, देखिए इसको ऑन किया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए एयर वेंट पोजीशन में हो गया, ठीक है। फिर हमने इसको ऊपर करके पोजीशन रीड किया, ठीक है, कितना हमारा रीडिंग डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 डायमीटर्स ऑफ पाइप है, आप चाहे तो किसी अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो रीडिंग मिली पहले वाली पाइप में, दोबारा से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो लेफ्ट लिम्ब रीडिंग हमें मिले 39 और राइट लिम्ब रीडिंग मिली हमें 32। तो हमने यहाँ से हेड लॉस कैलकुलेट करी, यहाँ पे एक्चुअली 12.6 दिखा रहा है, बट एज वी नो दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्करी इज 13.6, तो हम लोग यहाँ पे 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हेड लॉस हमें मिला 88.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब हमारा जो पानी है हम लोग अलाउ कर देंगे फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल पानी को हम लोग फ्लो करना अलाउ कर देंगे और ये नीचे वाला टैप खुला रहेगा, ठीक है, नीचे वाला टैप खुला रहेगा जब तक हमारा स्टॉप वॉच ओपन नहीं कर रहे हैं, नीचे वाला टैप खुला हुआ है, ठीक है, पानी जो है फ्लो कर रहा है इजिली, ठीक है, फाइन। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस टैप को जो एग्जिट वाल्व है इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप में इस एग्जिट वाल्व को क्लोज करिए, ठीक है। और स्टॉप वॉच से टाइम नोट करिए कि 5 सेकंड भरने में 5 सेंटीमीटर की हाइट तक भरने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा। तो हमें देखने को मिला कि भाई सेकंड बार जब हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया सेम उसी पाइप में, तो हमें पहले वाले केस में हमें 12 सेकंड लग रहा था 5 सेंटीमीटर भरने के लिए, बट इस बार हमारा 15 सेकंड लगा, ठीक है। तो 15 सेकंड लगा, अकॉर्डिंगली जैसे हम लोगों ने सारा डाटा कैलकुलेट किया था, क्यू थ्योरेटिकल निकाल लीजिए पहले, ठीक है। क्यू थ्योरेटिकल इतना आ गया, क्यू एक्चुअल निकाल लीजिए, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकाल लीजिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन द ट्रायल 2 इज 0.89। सिमिलरली यू हैव टू परफॉर्म द ट्रायल 3, ठीक है, ट्रायल 3 भी परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। सेम उसी पाइप में फिर हमने ये लिक्विड गया हमारा, ठीक है। स्नॉब को फिर हमने अलाउ किया वाटर के लिए, ठीक है, क्लोज कर दिया मतलब। और यहाँ पे फिर हमने जो नॉट ऑफ मैनोमीटर था उसको एयरवेंट पोजीशन से फिर हम लोगों को जो है वो हेड डिफरेंस नापना था, ठीक है। तो रीड पोजीशन में हमने कर दिया इसको, हमको रीडिंग मिलेगी इसमें भाई, ठीक है। पहले हम लोग को लॉक था, ठीक है, लेफ्ट लिम्ब रीडिंग और राइट लिम्ब रीडिंग जो है हम लोगों का आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने हेड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर हमने पाई यहाँ से फ्लो अलाउड किया, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए एग्जिट वाल्व से जो पानी निकल रहा है, ठीक है। अब फिर जब एग्जिट वाल्व को जैसे ही बंद करेंगे वैसे ही हम लोग जो स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे ताकि वो पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो एग्जिट वाल्व को हम लोग बंद कर देंगे, बंद कर दिए। अब देखिए टाइम स्टार्ट हो गया। सो टाइम जो 5 सेंटीमीटर की हाइट को बनने के लिए थर्ड ट्रायल में कितना लगा हमारा 14 सेकंड लगा, ठीक है। फिर वही सेम कैलकुलेशन करके हम लोग जो है सारा हम लोग जो है सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो इस केस में हमारे जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई 0.84। तो 3 डिफरेंट ट्रायल्स में 3 डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी, तीनों का हम लोग मीन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर ट्रायल 4 भी है, ठीक है, बट हम लोगों को इस पार्ट को जल्दी जल्दी हम लोग स्किप कर देते हैं एंड विल गो थ्रू द लास्ट एंड रिजल्ट्स, ओके। चलिए ये रीडिंग आ गई हमारी, ओके। फाइन, इसमें हमारा कितना सेकंड लगा देखते हैं। तो हमारा 17 सेकंड लगा 5 सेंटीमीटर की हाइट को भरने के लिए,
ठीक है, and accordingly you can calculate the things which we have already covered in the last trials. Okay, so in this we have obtained the value of coefficient of discharge as 0.93. So we have performed 4 trials on the same 50 centimeter diameter of pipe in order to calculate the rate of flow. ठीक है, तो हम लोग अगर कर्व बनाना चाहे Q एक्चुअल वर्सेस H का जो है वो कर्व बनाएंगे। ठीक है, और फिर हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया कि भाई एक्चुअल डिस्चार्ज और हमारा जो एक्चुअल हेड जो है उसमें क्या वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमारे पास कुछ क्विजेज हैं। ठीक है, इस क्विज को आप चेक कर लीजिए, अपने आंसर्स को चेक करिए कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, ठीक है, वो सही परफॉर्म किए हैं कि नहीं परफॉर्म किए। सो दिस इज व्हाट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 regarding the measurement of coefficient of discharge through venturimeter. Okay, thank you.